माई हाउस इज हॉन्टेड पार्ट 2 पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। अगर पार्ट 2 भी देखते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए स्टोरी की तरफ। Mr. Seesman and Dr. Classen listened carefully, hearing the turning of the double locks and the door opening. Mr. Seesman seized his revolver. You're not afraid, are you? Said the doctor, getting up. Better be cautious. Whispered Mr. Seesman, taking the candelabrum in the other hand. The doctor followed with his revolver and light and went out into the hall. Who's there? Shouted the doctor at the figure. The figure turned and uttered a low cry. There in her white nightgown stood Heidi with bare feet, looking bewildered at the bright light and the weapons. She was shaking with fear while the two men were looking at her in amazement. Seesman, this seems to be our little ghost. Said the doctor. Heidi, what does this mean? Asked Mr. Seesman. What are you doing down here? White with fear and hardly able to speak, Heidi said, I do not know. The doctor came forward now. Seesman, this case belongs to my field. Please go and sit down while I take her to bed. Don't be afraid, little girl. Everything is all right. Don't be frightened. The doctor put the little girl to bed, covering her up carefully. Then he said kindly, Now, everything is all right. Tell me, where did you want to go? I did not want to go anywhere. Said Heidi. I did not go on my own. I was there all of a sudden when I woke up. I see. And were you dreaming? Did you see or hear things very clearly in your dream? Yes, I have the same dream every night. I think I'm with my grandfather again and can hear the fir trees outside, and I see the stars shining so brightly, and then I open the door of the hut and it is so wonderful. But when I wake up, I'm still in Frankfurt. Said Heidi, trying to control her sobs. And do you have any pain in your head or back? No, but I feel as if a big stone was pressing me here. Heidi said, touching her throat. As if you had eaten something that won't go down. No, not like that, but as if I wanted to cry very much. So then you cry out, don't you? Oh no, I must never do that, for Miss Rottenmeier has forbidden it. Then you swallow it down. Do you like to be here? Yes, Was the faint, uncertain reply. Where did you live with your grandfather? up on the mountain. But wasn't it a little boring there? No, it was so beautiful. Heidi cried but could say no more. Tears rushed violently from her eyes and she broke out into loud sobs. The doctor said, There. It is okay to cry. Go to sleep afterward, and when you wake up, everything will be all right. Then he left the room. Joining his friend downstairs, he said, Seesman, the little girl is a sleepwalker and has unconsciously scared your whole household. Besides, she is so homesick that her little body is weak and tired. We shall have to act quickly. The only remedy for her is to be back in the Alps. This is my prescription, and she must leave for home tomorrow. You think I should send this child back in this weak condition when she had come in good health? No doctor ask anything but that. Take her in hand and make her get well before she goes back. Cure her first. Seesman, The doctor replied seriously, we cannot cure her with powders and pills. The child has no strength, and if you keep her here, she might never get well again. If you restore her to the mountain air to which she is used to, she may recover and get well again. When Mr. Seesman heard this, he said, If that is your advice, we must act at once.
चलिए सेकंड पार्ट भी हम अब देख ही लेते हैं हिंदी में। अब यहाँ पे देखिए जो क्लैरे हैं वो डॉक्टर और उनका फ्रेंड जो है सैजमैन, ये दोनों भी भूत की देखने के लिए वहाँ पे बैठे हैं। और ये फर्स्ट पार्ट था, तभी कुछ आवाज़ सुनाई दिया था और जैसे ही आवाज़ आया तब दोनों भी अपने रिवॉल्वर के साथ वो खड़े हो गए थे और अब वो देखने जा रहे थे कि हॉल में आवाज़ कैसे आया। तभी उन्होंने देखा कि उन्होंने सुना कि डोर ओपन करने का जो आवाज़ है वो उन्हें आ रहा था। अब दोनों ने हाथ में कैंडल्स और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लेके हॉल में जाने की कोशिश की है। दोनों एक दूसरे से बोलते हैं कि दोनों अच्छे तरीके से जाएंगे, सावधानी से जाएंगे। और ये देखिए अब रिवॉल्वर और मोमबत्ती को उठा के उन्होंने दोनों रेडी हो गए हैं जाने के लिए। धीरे धीरे दोनों बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं हॉल की तरफ जहाँ से उन्हें वो आवाज़ आया था। जैसे ही दोनों फ्रेंड जा रहे हैं तभी डॉक्टर ने देखा कि वहाँ पे वाइट गाउन पहन के कोई तो छोटा सा भूत खड़ा है डोर के बिल्कुल बीचों बीच। ये कौन है ये छोटा सा भूत? भूत ने पीछे मुड़ के देखा, एक प्यारी सी लड़की थी जो क्लारा थी। तभी सैजमैन है वो जोर से मतलब उन्हें देख के, दोनों को देख के, उनके हाथ में कैंडल्स है, रात के 1 बजे का टाइम है, एक हाथ में रिवॉल्वर है। लड़की बहुत बुरी तरीके से डर जाती है उन्हें देख के। एक्चुअली वो नींद में चल के वहाँ पे आई थी, ये डॉक्टर को पता चल गया था, लेकिन जो सैजमैन है वो तो मानने के लिए रेडी नहीं थे। ये भूत छोटा सा कौन है? ऐसे जब डॉक्टर ने हैरानी से बोला तब जो बहुत हैरानी से जो सैजमैन है वो अपनी लड़की को देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हाइडी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और कैसे यहाँ पे चल के आई हो? हाइडी मतलब वो लड़की जिसका नाम क्लारा है, वो बहुत ही डरी हुई थी। पापा उससे बार बार पूछ रहे थे लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो इतनी बुरी तरीके से डर गई थी। क्या आंसर देगी वो? कुछ भी उसके पास आंसर नहीं था। वो डर रही थी और मुझे कुछ पता नहीं मैं यहाँ पे क्यों आ गई हूँ। तभी डॉक्टर बोले कि मुझे सब समझ में आ रहा है, ये मेरी केस है, लेट मी हैंडल दिस केस माई सेल्फ, और मैं ही अब इसे अच्छा कर सकता हूँ। ऐसे बोलने के बाद डॉक्टर आगे आगे जाने लगे और उन्होंने लड़की से पूछताछ शुरू कर दिया कि बेटा आप यहाँ पे क्यों आए हैं, चलिए हम अपने रूम में चले जाते हैं, आपका रूम कहाँ है। ऐसे बातें करते समय वो उसे रूम में लेके गए। उसे अच्छे से उन्होंने एक कॉट पे सुला दिया, उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से एक चादर भी डाल दी है और लड़की को बोल रहे हैं कि अब तुम बहुत सेफ हो, तुम सो सकती हो। लेकिन उसके पहले मुझे बताओ कि उस डोर के पास जाके तुम क्या करना चाहती थी, कहाँ जाना चाहती थी? ऐसे वो पूछताछ कर रहे हैं। क्या रोज जाती हो? कहाँ जाना था बेटा तुम्हें? तो लड़की बोलती है मुझे कहीं पे भी नहीं जाना था, मुझे पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं रोना चाहती हूँ लेकिन मैं रॉटन मेरी के डर से रो भी नहीं सकती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा भी लगता है और अच्छा भी नहीं लगता है। मुझे मेरे दादाजी की बहुत याद आती है। मैं और मेरे दादाजी जब हम रहा करते थे एक साथ तब। तो डॉक्टर साहब बोलते अच्छा, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर उनको बार बार पूछ रहे कि वहाँ पे गई कैसे। तब लड़की बोलती है कि मैं जब सोती हूँ तब नींद में मेरे दादाजी मेरे सपने में आते, हम बहुत मज़ा करते हैं, बहुत बातें करते हैं और खिड़की से हम बाहर देखते हैं तो बाहर बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, अच्छे से मून होता है, अच्छे से स्टार्स होते हैं और वहाँ का वेदर, वहाँ की फ्रेश एयर बार बार मुझे याद दिलाती है मेरे दादाजी के घर की। और मैं उसमें चल पड़ती हूँ, दरवाज़ा खोलती हूँ, वही एटमॉस्फेयर बाहर मुझे दिख जाता है। लेकिन जब मैं आंखें खोलती हूँ सुबह तब मैं दादाजी के घर में नहीं, यहाँ पे हो जाती हूँ। और वो ऐसे कहते रोती है वहाँ पे, पर मैं बहुत रोना चाहती हूँ लेकिन रो भी नहीं सकती हूँ। रॉटन मेरी जो है उनके डर से मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। डॉक्टर साहब बोलते हैं तो क्या तुम दादाजी के घर जाना चाहती हो? रॉटन मेरी बोलती
मैं यहाँ पे भी खुश हूँ। वहाँ की फ्रेश एयर को मैं बहुत मिस करती हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे माउंटेन्स है, उसे भी मैं मिस करती हूँ। लेकिन यहाँ पे भी रहना मुझे बुरा नहीं लगता है। सब अच्छे से है, सब मेरी अच्छे से देखभाल करते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या तुम फिर से वहाँ जाना चाहती हो? रॉटन मेरी की डर से लड़की बोलती है, मुझे रोना चाहिए लेकिन मैं रो नहीं सकती। देखो, अगर तुम्हें रोने की इच्छा हो रही है तो तुम रो सकती हो, रोने से तुम अच्छी हो जाओगी। लेकिन मैं नहीं। और तब वो लड़की बताना शुरू करती है, मुझे ऐसे जैसे कि कोई मेरा गला पकड़ रहा है, ऐसे महसूस होता है। फ्रेश एयर नहीं मिलती है। डॉक्टर साहब बोलते, ऐसे क्यों लगता है तुम्हें? लड़की बोलती है, मुझे पता नहीं, घुटन सी होती है इस घर में मुझे। डॉक्टर बड़े ही हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं, देखो बच्चा, तुम्हें जो चाहिए तुम कर सकते हो। जैसे रोना चाहिए तो रो सकती हो ना, कोई बात नहीं। लड़की बोलती है, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो भी अच्छी बात है। और तभी दादाजी के घर की याद तो आती है। दादाजी के जो माउंटेन्स है, दादाजी के घर का जो वेदर है, ठंडी हवा है, फ्रेश है, ये सब बताते समय उसे रोना आ जाता है। वो बड़ी बुरी तरीके से रोने लग जाती है। उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है। वो अपने आप को लोनली फील कर रही है, लेकिन वो बात भी किसी को बता नहीं सकती। ये सबसे बुरी तरीका उसके साथ हो रहा था, इसीलिए वो दुखी थी। और यहाँ पे देखिए, डॉक्टर को ये सब पता चल गया था। डॉक्टर साहब उसे बोलते हैं, ठीक है, एक काम करो, रोना भी अच्छा होता है सेहत के लिए। पहले थोड़ा सा रो लो, उसके बाद में जब तुम सो जाओगी, तुम्हें सुबह उठते ही बहुत अच्छा लगने लग जाएगा। अब तुम्हें जितना हल्का करना है अपने मन को, उतना हल्का कर लो। लड़की बहुत बुरी तरीके से रोती है। यहाँ पे डॉक्टर साहब नीचे आते हैं और जो सिसमन वहाँ पे ही बैठे हुए हैं, उन्हें बताते हैं कि देखो, इस लड़की को अगर ये जो नींद में चलने की बीमारी है, इससे रोकना है तो उसका घर जो है दादाजी के पास, उसे वापस भेजना चाहिए। वो होम सिक लड़की है और उसे अपने घर में भेजना ही उसकी सबसे बड़ी जो दवाई है यही है। ये टैबलेट्स है, इंजेक्शंस है, सलाइंस है, ये देने से उसकी बीमारी बिल्कुल अच्छी नहीं होने वाली है। तो सेसेमन, एक काम करो, इस लड़की को जितना जल्द हो सके उतना जल्दी जहाँ वो माउंटेन्स एरिया में रहती थी वहीं पे उसे भेज दो। वो बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाते हैं, लेकिन सेसेमन बोलते हैं उसकी हालत वहाँ पे दिन ब दिन ख़राब हो रही थी, इसीलिए यहाँ पे लाया था। और अब इतना वीक हो गई है उसकी बॉडी, और उसे इस हाल में फिर से उसी जगह पे छोड़ दे जहाँ से वो बीमार होके आई थी, तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। पहले उसे तुम अपने घर लेके जाओ और उसे अच्छे से करके फिर बाद में देखते हैं कि उसे पहाड़ों पे भेजना है क्या नहीं भेजना है दादाजी के घर में। तभी डॉक्टर साहब उसे फिर से बोलते हैं कि देखो, उसकी बीमारी के लिए कोई इलाज मेरे पास तो नहीं दिख रहा है। ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि जो उसका मन हल्का कर सके, जो उसे फ्रेश एयर दे सके। और ये सब चीज़ें उसे वही मिल सकती है जहाँ से वो आई है, मतलब उसके दादाजी का घर। सुनो, तुम्हारे घर में कोई भूत नहीं है और उस लड़की को भी कोई बीमारी नहीं है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो यहाँ पे अपने आप को अलोन मिस कर रही है, वो दादाजी के घर को मिस कर रही है। वो ना किसी से हंस सकती है, ना बोल सकती है, ना फ्रेश एयर ले सकती है, ना रो सकती है। तो सुनो सेसमन, उसे अपने दादाजी के घर में भेज दो, जितना जल्दी हो सके उतना। तो सेसेमन बोलते हैं, लड़की की हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ, धन्यवाद। के साथ ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों को अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए।